So, hello everyone. Today we are going to begin with a new chapter that is life processes. It is the first chapter of biology in grade 10. So, before we start, I would like all of you to take a deep breath. You just did it without even thinking. That means your body, your lungs are supplying oxygen to the blood. Your blood is flowing throughout your body cells, supplying nutrients, oxygen wherever required. And even if you miss or skip any meal of the day, your body is still trying to produce lot of energy. So what does it indicate? There are many logical processes, metabolic processes which are happening on their own within your body, and that is what is known as life processes. इसी को हम क्या बोलते हैं? Life processes. And in today's class I will be covering the first life process, that is nutrition. So we will be learning about nutrition in plants, and then we will be moving to nutrition in animals. So in today's class, we will be learning about nutrition in plants. So let's start. Okay, any type of metabolic activity which is taking place in our body, which is essential for any living organism. Is it justified? Yes, of course. Life processes. So you are learning a chapter whose name is life processes. When we talk about life processes, children, it has two words. One is life needs. It occurs in living organism. Second word is processes. What are processes? These are the sequence of steps. Sequence of steps मतलब कोई भी चीज complete होने के लिए we have to go through multiple steps. For example, nutrition is one of the life process, right? Nutrition is one among the life process. So what do we understand by nutrition? Nutrition से आप क्या समझते हो? क्या आता है पहली बार चीज दिमाग में? The food we eat, right? That is, yes, utilization of that food. What kind of utilization takes place in our body? How does the body utilizes the food? How does a cause energy? In the food to get energy, what else? Does food help in body cell repair, tissue repair? Yes or no? So why, how we are utilizing the food? How we are utilizing the food to get energy, number one. Number two, we are using it for the biosynthesis of the body constituents. Biosynthesis क्या है? सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? अगर बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करेगी तो अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेगी. सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? टू फॉर्म. इसका क्या मतलब होता है? टू फॉर्म. कोई भी चीज का बनना. बायोलॉजिकल मतलब बायो मतलब लाइफ, राइट? किसी भी लिविंग कंपोनेंट का फॉर्म होना उसको क्या बोलते हैं? बायोसिंथेसिस. अब लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेल भी होते हैं, टिश्यू भी होते हैं, राइट? एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन फीटस ऑर्गन्स भी होते हैं. यस और नो? So nutrition is only intake of food, or along with the intake, it is also the utilization of utilization. Okay, nutrition is intake of food and the utilization of food. Triple simple. ठीक है? So अब आपने is it taking place in one step or two step? Two steps. So that is why we are calling it a process. इसको क्या बोल रहे हैं? Process. क्योंकि यही word आप केमिस्ट्री चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं. ठीक है? केमिकल रिएक्शन के साथ स्टार्ट करोगे, वो भी एक प्रोसेस है. दो तीन. तो प्रोसेसेस का मतलब सबसे पहले समझो. प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, राइट? what do we mean by processes? The sequence of steps. जब कोई भी चीज हमारी बहुत सारे स्टेप्स में हो रही होती है, मल्टीपल स्टेप्स में हो रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसेस. So we are here today. We will start with the chapter which is life processes. So the processes, the metabolic processes which are required to sustain the living organism, those are known as life processes. उनको क्या बोलेंगे हम? Life processes. The very first life process we are studying will be nutrition. आज का पूरा क्लास किसके ऊपर डेडिकेटेड है? Nutrition. But along with nutrition, you have to study all these processes. It is in the same chapter. ठीक है? आप कौन कौन से processes पढ़ेंगे? Transportation. Which organ is involved in the transportation? Human heart. यस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई कैरियर चाहिए होता है. वो कैरियर क्या होता है? ब्लड कैरियर. ब्लड क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन भी कैरी कर रहा है, वेस्ट भी कैरी कर रहा है,
न्यूट्रिएंट्स भी कैरी कर रहा है, हॉर्मोन्स भी कैरी कर रहा है, और इसके साथ साथ एक मेजर काम और कर रहा है. इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर. वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. We can switch our temperature according to the external surroundings. So that is also done by the blood. And blood helps in the ट्रांसपोर्टेशन की. ट्रांसपोर्टेशन तो उसी सोचो ना, ट्रांसपोर्टेशन उसी चीज की होती है तो चीज मूव कर पाती है. तो बॉडी में क्या मूव कर पाता है? ब्लड मूव कर पाता है, राइट. तो सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड. ब्लड के थ्रू हो रहा है. We will also be studying about respiration. What is respiration? Is it breathing? The most common myth. Is it breathing? What is it then? No, ma'am. What is it then? Oh, breathing is a great thing. What is it? What is it? यही तो गलती करते हैं. When we say we are respiring, we say we are inhaling. Usually mostly बच्चे यही गलती करते हैं कि जब वो बोलते हैं कि respiration मतलब exhaling और inhaling, जबकि ये बिल्कुल गलत है. What is respiration? Utilization of the food. Nutrition में पढ़ा था. Intake of food and then food is going to get utilized. अब वो utilization कहाँ हो रहा है? Respiration में हो रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था. रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया. एटीपीज जनरेट हो रहे हैं. एटीपीज क्या होते हैं? की कैरियर्स होते हैं. अब वो एटीपीज कहाँ बन रहे हैं? किस प्रोसेस में बन रहे हैं? रेस्पिरेशन. वो किस प्रोसेस में बन रही है? रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होगा? ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होता है? ब्रीदिंग. दैट इज जो आप क्या बोल रहे हो? एक्सेलिंग एंड एयरिंग. ठीक है. अब रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? द ब्लड इज कैरिंग व्हाट? ऑक्सीजन. ब्लड क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन. द फूड वी आर ईटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ न्यू ब्रीथिंग. ये सब मिलके काम करते. कोई भी प्रोसेस इंडिपेंडेंट नहीं होता. एवरी प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर लाइक प्रोसेस. तो न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? इनटेक ऑफ फूड. न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? इनटेक ऑफ फूड. सो फूड वी आर ईटिंग, वी आर डाइजेस्टिंग इट विद इन द न्यूट्रिशन itself, right? The food we eat the complex food. The food get digested and become water soluble and get assimilated into our blood. अब वो फ्लू फूड कौन कैरी कर रहा है? ब्लड है, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो ब्लड के पास क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. यस और नो? ब्लड के पास क्या है? आराध्या, आर वी पेइंग अटेंशन? नो, यू आर बिजी डूइंग समथिंग ऑन योर ओन. So your blood is carrying what? Blood is carrying nutrients. Blood has a red color pigment. What is hemoglobin? What does hemoglobin carries? Oxygen. वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? ब्रीथिंग से मिल रहा है. We inhale oxygen. तो जब हम inhale करते हैं तो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स में एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं. एल्वुलाइज के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है. तो वो एल्वुलाई क्या करते हैं? उन ब्लड कैपिलरीज को क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं. तो ब्लड के पास क्या पहुंच गया? ऑक्सीजन. तो ये है हमारा न्यूट्रिएंट विच इज ऑल्सो नोन एज एसिमिलेटेड. न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेटेड फूड. तो जब आपका फूड प्लस ऑक्सीजन ये दोनों अंदर जाके जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एटीपीज एंड CO2. क्या बनाते हैं? एटीपीज एंड CO2. तो एटीपीज कहाँ बन रहे होते हैं? ये वाला रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. और बॉडी सेल्स में क्या पड़ जाता है? अभी भी आप सब ब्रेकफास्ट करके आए हो? कुछ कुछ लेकर आए हो? थोड़ा सा कुछ मिल्क और भूखे रहेंगे हम 11 बजे तक. So your body is producing those who have taken. So body has started doing what? Digestion हो रहा है. Digestion will take place for good 3 hours. 3 hours के बाद क्या start हो जाएगा? साथ साथ respiration तो हो ही रहा है, क्योंकि जो फैट रिजर्व है या जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं, राइट, वो सब क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. जब फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? एटीपीज. एटीपीज के साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर. तो जो तुम्हें घर में नहीं चाहिए होता वो क्या बन जाता है? वेस्ट. वेरी गुड. जो हमें नहीं चाहिए होता वो हमारे लिए क्या है? वेस्ट है. तो अगर आप वेस्ट की बात करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बॉडी का सेलुलर वेस्ट. सेलुलर वेस्ट क्यों बोल रहे हो? हर वर्ड को कनेक्ट करो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स. सेलुलर वेस्ट क्यों बोल रहे हो? ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? विद इन द सेल हो रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल के अंदर है. तो ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? सेल के अंदर होता है. तो ये वेस्ट किसका हो गया?
सेल का वेस्ट हो गया, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? सेल्यूलर गैसियस वेस्ट। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर गैसियस वेस्ट। अब आप देखो, रेस्पिरेशन करके टाइम किसकी हेल्प चाहिए थी? न्यूट्रिशन। खाना नहीं खाओगे तो एसिमिलेटेड फूड नहीं बनेगा, राइट? ब्रीदिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो कैन वी सी दीज थ्री प्रोसेसेस आर इंटरलिंक्ड? Not only these three processes, even excretion, your metabolism, everything is interlinked. हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ क्या है? काम मिलके करते हैं। जैसे स्कूल को, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्कूल। आपके स्कूल में पूरा टीम रहता है, आपके प्रिंसिपल रहते हैं, आपके एचओडीज रहते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है, आपका टीचिंग स्टाफ रहता है। तो अगर एक भी टीम वीक पड़ती है तो क्या उसका असर दूसरी टीम पर आएगा? यस। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ एब्सेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लोग चले गए, या दे आर नॉट वर्किंग, सो विल इट अफेक्ट द टीचिंग डिपार्टमेंट? यस। प्रिंसिपल आईएटीसी स्कूल में, तो इज इट गोइंग टू अफेक्ट द जूनियर टीम? यस। तो सारी चीजें कैसे करती है काम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, सारे के सारे प्रोसेसेस क्या करते हैं? आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। नो सिंगल प्रोसेस कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। इज दिस क्लियर? No single process can work independently. ठीक है, every process is coordinated with one other process. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किस पे डिपेंडेंट है? न्यूट्रिशन पर। जब तक न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक ब्लड को क्या नहीं मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी। न्यूट्रिशन से ऑक्सीजन कहाँ से मिल गई? ऑक्सीजन किससे मिलेगी? ब्रीथिंग से मिलेगी। ऑक्सीजन सही से बोलो ना, ऑक्सीजन किससे मिलेगी? ब्रीथिंग से मिलेगी। और वो ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग से मिलेगी वो किसमें हेल्प करेगी? रेस्पिरेशन में। किसमें हेल्प करेगी? रेस्पिरेशन में। अब यहाँ पे फूड ने किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। तो जब भी कोई भी कंपोनेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चा? क्या बनता है? दैट इज नोन एज, यस, एटीपी और CO2। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इज दिस क्लियर? पक्का से क्या ये बात समझ में आ गई कि कैसे ये तीनों प्रोसेस? एक्सक्रीशन भी है, न्यूट्रिशन के टाइम पे डाइजेशन होता है, और कुछ क्या रह जाता है? कोई भी लाइफ प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो न्यूट्रिशन भी पूरी तरह नहीं होता। कुछ पार्ट ऑफ फूड क्या रह जाता है? अनडाइजेस्टेड। अब वो अनडाइजेस्टेड किसके थ्रू जाता है? आपका एक्सक्रीशन के थ्रू। इज दिस क्लियर? आर बी क्लियर अबाउट द चैप्टर आइडियोलॉजी? तो अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, ये आप समझेंगे। चैप्टर तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दी है। रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका अलग है। अब ये सारी प्रोसेसेस कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, दिस इज योर सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम मेजरली किस पर फोकस करेंगे? टुडे वी आर स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन। आज हम किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं? न्यूट्रिशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन जो ना प्रोसेस आप पढ़ते जाओगे, न्यूट्रिशन के बाद हम रेस्पिरेशन पे मूव करेंगे, रेस्पिरेशन के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन पे मूव करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम एक लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, बिकॉज रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ कंटिन्यू कर पाएगी? नो, राइट? सो रिप्रोडक्शन एक आपका अलग चैप्टर है, चैप्टर 3 ऑफ बायोलॉजी दैट वी हैव टू स्टडी दिस ईयर, राइट? अब हम पढ़ेंगे कैसे एक एक प्रोसेस, यहाँ में डिटेल में पढ़, राइट? न्यूट्रिशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम हर प्रोसेस के लिए उस प्रोसेस को विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स पढ़ेंगे, और फिर उस प्रोसेस को विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बाहर निकाल दूंगी बिल्कुल अगर मेरी क्लास में लेट, and no need to give me mics. Settle down faster. न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप जैसे न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो पहले आप क्या पढ़ोगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ोगे। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने के बाद आप क्या स्टार्ट करोगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। तो हम समझेंगे प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, और फिर हम क्या समझेंगे? एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारी प्रोसेसेस कैसे पढ़नी है?
with respect to plants and then with respect to animals. तो अब आपको चैप्टर की क्लैरिटी हुई कि हम चैप्टर कैसे आगे मूव करेंगे. And biology for 10th class, it first 3 to 4 months I take only on Sunday. बायोलॉजी आप कैसे पढ़ा करोगे? सिर्फ संडे संडे पढ़ा करोगे एक एक्सटेंसिव क्लास में, सो दैट यू कैन यूटिलाइज द होल वीक टू प्रिपेयर द. इज दिस क्लियर? बाकी जो आपके वीक डेज की क्लासेस रहा करेंगी वो कैसी रहा करेंगी? केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स चल रहा हो तो फिजिक्स. ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, that is the difference between living and non-living organism. When we are talking of living organism, what is the most common thing that you find within all the living organisms? Movement, respiration. Respiration is there, but the most common thing which can we see? Can you see the respiration inside the cells? Can we see it? No. What can you see? What can you see within all the living organism? Movement. But you may ask the question ना, plants are also the living organism. How can we see the नहीं चीज दिमाग में ये चीज चल रही है कि मैम ने बोल दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब में क्या कॉमन है? मूवमेंट कॉमन है. बट प्लांट्स में हम कैसे मूवमेंट देखें? प्लांट शो द मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्रोथ. प्लांट्स का ग्रोथ कैसा होता है? इनडेफिनाइट होता है. जितना प्लांट का ट्री का लाइफ होता है तब तक वो क्या करता जाता है? ग्रो करता जाता है. राइट. लेंथ वाइज ग्रोथ भी होता है और गर्थ वाइज ग्रोथ भी होता है. याद आ रहा है? लेंथ वाइज ग्रोथ कौन करवाता है? एपिकल. गर्थ वक्त जो पुरानी चीजें भूलने नहीं है. जब पुरानी चीजें याद रहेंगी तभी नई चीजों के साथ कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है. तो वो प्लांट्स में कैसे देखने को मिलता है? इन ऑफ देयर क्यू. प्लांट्स डू नॉट शो द मोबिलिटी. मैंने यहाँ पे मोबिलिटी नहीं लिखा, लोकोमोशन नहीं लिखा, क्योंकि लोकोमोशन क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. अब मूवमेंट कैसा होता है? एक मूवमेंट है, आई एम मूविंग माई हैंड्स. एम आई मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूविंग माई हैंड्स? नो. So this is a kind of movement. But if I am walking around, what is it? This is known as mobility. So छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है जो बच्चे नहीं समझते और उससे गलतियां करते हैं. तो मूवमेंट कैसी है? अगर मैं हैंड्स अप और डाउन मूव कर रही हूँ, ये भी एक मूवमेंट है. सो दिस इंडिकेट्स आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन अकॉर्डिंग टू माई विल. सो आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मुझे कोई दूसरा मासियन आके देखेगा, कोई बता सकता है जस्ट बाय टेलिंग I am moving my hands, right? I am writing, so I'm moving my fingers. So what am I showing? Movement. Mobility क्या होता है? Moving from one place to another. तो ये तो एक एनिमल मूवमेंट हो गया. कुछ प्लांट मूवमेंट भी होता है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सनफ्लावर. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मूनफ्लावर. सनफ्लावर में क्या होता है? इट कीप्स ऑन मूविंग इट्स सेल्फ टूवर्ड्स द सनलाइट. यस और नो? सन का डायरेक्शन टूवर्ड्स सन, वो सनफ्लावर अपने आप को मूव करता रहता है. There is one more plant which is known as Mimosa pudica. That plant is also known as touch me not. और उसको हिंदी में छोई मोई प्लांट भी बोलते हैं. तो इवन बोर्ड के पेपर में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते. बोर्ड के एग्जाम में अभी भी जैसे हम बच्चों को प्रिपेयर करवा रहे थे, तो मिमोसा पुदिका आपका इस चैप्टर में भी है, नेक्स्ट चैप्टर में भी है. सो मिमोसा पुदिका इज अ बोटानिकल नेम. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बुटा, जैसे हम ह्यूमन से, ये हमारा इंग्लिश नेम है, बट बोटानिकल नेम हमारा क्या है? होमो सेपियंस. व्हाट इज आवर बोटानिकल नेम? होमो सेपियन. इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का एक बोटानिकल नेम होता है, एक इंग्लिश नेम होता है. तो टच मी नॉट प्लांट का बोटानिकल नेम क्या है? मिमोसा पुदिका. आपको पता होना चाहिए. इसे टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, इसे छुई मुई प्लांट. इवन बोर्ड के पेपर में इसका नाम छुई मुई लिख कर है, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ. इसीलिए मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए. मिमोसा पुदिका इज नथिंग बट टच मी नॉट. आपने देखा व्हेन यू टच इट्स लीव्स, आप जब इसकी पेटल्स टच करते हो तो वो फोल्ड कर जाते हैं. हाँ, ये कोई बता सकता है? हाँ, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं. राइट. वो अलग है. राइट. वो अपनी मूवमेंट दिखा रहा है क्योंकि इट इज ग्रैबिंग द फूड, जब उसके पास फूड. बट कैन एनीवन बी थिंक कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ इसके अंदर? यस, ये सेंसिटिव है. वेरी गुड. जैसे कुछ बच्चे बहुत इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, ऐसे ही ये इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स टच. ये किसके लिए सेंसिटिव है? इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स टच. तो आप सोचो, ऐसे सोचा करो. जितना सोचोगे उतने आप आंसर्स एक्सप्लोर कर पाओगे.
ऐसा क्या होता है इस प्लांट में कि आप उसको टच कर रहे हो और इट फोर्स इट्स does not sense danger. There are certain plants which shows the movement with respect to touch. So one of those plants is Mimosa बुद्धिका. तो ये क्या दिखाता है? मूवमेंट दिखाता है. सन किसके टूवर्ड मूवमेंट दिखाता है? सनफ्लावर सॉरी किसके टूवर्ड मूवमेंट दिखाता है? सन. मून फ्लावर किसके ये मूवमेंट दिखाता है? विद रिस्पेक्ट टू मूनलाइट. एंड मिमोसा पुदिका टच. फर्टिलाइजेशन पड़ा है. फर्टिलाइजेशन पड़ा है. फर्टिलाइजेशन आपको पता है जैसे पोलन ग्रेन आप स्टिग्मा पे टच करते हैं पोलन ट्यूब इलोंगेट होके ओवरी तक जाती है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग? जस्ट टेल मी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग? व्हाट इज इट हैपनिंग? दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ मूवमेंट. elongation of pollen tube within the style that is nothing but a type of movement. तो मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ? ये आपको सारे एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप समझ पाओ कि प्लांट्स किस किस टाइप के मूवमेंट दिखा. प्लांट कैसी मूवमेंट दिखाता है? प्लांट कुछ ग्रोथ मूवमेंट्स दिखाता है तो डायरेक्शनल होती है और कुछ नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स दिखाता है. ग्रोथ मूवमेंट्स की बात करेंगे जैसे शूट्स हैं. शूट्स में क्या आ गया आपके? लीव्स आ गए, स्टेम्स आ गए, ठीक है, ब्रांचेस जो भी आ गए. ये कैसे मूव करते हैं? टुवर्ड्स सनलाइट मूव करते हैं. ग्रोथ कैसे होता है ये? टुवर्ड्स सनलाइट होती है. बट अगर रूट्स की बात करूँ कि रूट्स टुवर्ड्स सनलाइट होता है और इनकम सनलाइट. ओके, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सॉइल वो जियोट्रॉपिज्म शो करता है. तो प्लांट की मूवमेंट्स हम चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए तुम्हें समझने के लिए कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू कैन सी द हॉर्सेस रनिंग, यू कैन सी द फिशेस स्विमिंग, राइट? यू कैन सी द बर्ड्स फ्लाइंग. व्हाट इज इट? कैन एनीवन टेल मी? दिस इज sperm. This is sperm, male gamete, right? This is cheetah and this is snake. So slithering is kind of movement with snake shows, right? Reptile shows crawling. अगर आप लिजर्ड मूवमेंट की बात करोगे तो लिजर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉल करना. स्नेक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्लिथरिंग. प्लांट मूवमेंट कैसी है? Folding up of leaves is one of kind of plant movement. तो plant movement टू टाइप्स की होती है. कैसी होती है? ग्रोथ मूवमेंट होती है और नॉट ग्रोथ मूवमेंट होती है. अब इसमें मुझे बताओ जो आपने समझा है उससे दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि जो ग्रो इज इट अ ग्रोथ मूवमेंट और नॉन ग्रोथ? ग्रो नहीं कर रहा है, इसमें कुछ भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है. इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ एक मोशन, एक मूवमेंट शो की जा रही है. और ये मूवमेंट पता क्यों होती है? जैसे ही मैं तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है चैप्टर 2 में हम डिटेल में करेंगे. टू टू आंसर योर क्यूरियोसिटी, why does the mimosa pudica plant fold its leaves upon touching? जैसे हम उसको फोल्ड करते हैं ना तो इट शो द लीव शो द वाटर रिपल्शन. जो लीव्स होती है वो वाटर रिपल्शन शो करती है और जो टिप्स होती है ना इसके लीव्स की उसमें जो वाटर होता है वो वाटर पीछे की तरफ मूव कर जाता है. तो ड्यू टू विच द लीव्स बेंड डाउन, जिसकी वजह से क्या होता है? लीव्स बेंड हो जाती है और वो क्या करने लगती हैं? फोल्ड होने लगती. इज दिस क्लियर? ये हम चैप्टर 2 में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स पढ़ेंगे. बट अभी के लिए कि आपके दिमाग में ये चीज याद रह जाए कि प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं. अब आपसे कोई कोई पूछेगा कि यस प्लांट शो मूवमेंट, सो कैन यू गिव मल्टीपल एग्जांपल कि प्लांट कैसा मूवमेंट शो करता है? प्लांट टू टाइप के मूवमेंट शो करता है. कैसी कैसी? ग्रोथ मूवमेंट शो. शूट्स कैसी मूवमेंट शो कर रहे हैं? ग्रोथ. रूट्स कैसे कर रहे हैं? ग्रो. शूट्स किसकी तरफ करते हैं? सन की तरफ. और रूट्स किसकी तरफ करते हैं? ग्रेविटी की तरफ. मिमोसा पुटिका प्लांट कैसे करता है? नॉन ग्रोथ. सन प्लांट कैसे करता है? नॉन ग्रोथ. मून प्लांट कैसे करता है? नॉन ग्रोथ. ठीक है, ये ग्रो नहीं करते बट दे शो दी मूवमेंट्स. आर वी क्लियर? आर यू क्लियर अबाउट दिस स्लाइड एवरीबॉडी? ऑनलाइन स्टूडेंट, डू वी हैव क्लैरिटी नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now moving ahead, we can quickly go through this slide because you already know the characteristics of living thing. To tell whether an organism or whether a substance is living or not, what is the first and the primary thing we notice? What is the first and the primary thing we notice? Whether they can move or not, right? They need food, air, and water to be living, right? So that we call that organism as living organism. Do they grow? Yes, they can grow. Do they respond to changes around them? They are sensitive. सेंसिटिविटी का आपने एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा अभी पिछली स्लाइड में? मिमोसा भी पढ़ा आपने. सो विद दे शो एवरी ऑर्गेनिज्म शोज द सेंसिटिविटी. डू वी शो द सेंसिटिविटी? यस और नो? हाउ डू वी शो द सेंसिटिविटी?
What happens when we touch anything hot? What happens? You stand it. The flex, very good. What do? We pull our hand away. हम क्या करते हैं? We just pull our hand away. Does it happen instantly or you think I have touched something hot, now I have to pull my hand away? How do you do? Yes, you do it instantly. So your body responds. So this shows that we are sensitive. अब क्या है? Sensitive organism है. Do we respire? Yes, the living organism respire. Is respiration breathing? आज के बाद तो गलत नहीं करोगे because it sounds very absurd जब आप बोल रहे हो क्योंकि respiration is inhaling and exhaling. Is respiration breathing? No. What is respiration? What is respiration? Oxidation of food to release energy. Simple. जब भी आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है, आप सीधा सीधा बोलो ऑक्सीडेशन ऑफ. बहुत प्रिसाइज बोलना है, स्मार्टली बोलना है, तो कैसे बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. फूड कौन सा ऑक्सीडाइज होगा? जो सिंपल होगा, राइट, जो वाटर सोल्यूबल होगा, उस फूड को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेटेड फूड. सो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड टू रिलीज एटीपीज. क्या सर एटीपीज रिलीज हो रहे हैं? CO2. क्या हमारी बॉडी को CO2 चाहिए? क्या हमारी बॉडी को CO2 चाहिए? नो. क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनम्यूट करके मेरे साथ बोल सकते हैं? I will be sharing the whole board जितना आज हम पढ़ेंगे. I will give you time for writing as well. It is very important to speak along. Unmute करके बैठो. Sit in a peaceful place. Living or things also excrete. So every no. अब excretion का बात क्यों आती है? Why do a living organism, even plants also excrete? जो dead leaves होती हैं, fruits होते हैं, vegetables होती हैं. Do you know that is plant waste? And we as heterotrophs, we consume the plant waste. हम क्या कंज्यूम करते हैं? प्लांट वेस्ट. वेस्ट क्या होता है? सोचो, वेस्ट क्या होता है? जो हमें चाहिए नहीं, जो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? वेस्ट. तो क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो प्लांट्स पर ग्रो होती हैं, वो प्लांट्स खुद से कंज्यूम कर जाते हैं? नहीं. उसको कौन कंज्यूम कर रहा है? हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूम कर रहे हैं. तो वो प्लांट्स में से क्या हो जाएगा? वेजिटेबल एक टाइम के बाद जब राइप करेगी तो वो उसमें से सेपरेट आउट हो जाएगी. यस और नो? यस. अब वो सेपरेट आउट हो रही है तो दैट मीन्स वो क्या है प्लांट के लिए? वो क्या है? वेस्ट है. नाउ लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस. व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. इसके ऊपर 3 मार्कर क्वेश्चन आता है. Why reproduction is important? Reproduction is important to maintain the continuity of life. Whether we are talking of reproduction in plants or we are talking of reproduction in animals. ठीक है. 10th क्लास की बायोलॉजी, मार्क माय वर्ड्स, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप रेगुलरिटी के साथ उसको समझो और उसको उसी दिन प्रिपेयर करते हो, क्योंकि संडे संडे करोगे. जब संडे संडे करोगे तो आपके पास पूरा टाइम होगा उसको जाके करने.